So, a very good morning to all of you. Or as you people know that we were discussing the images which are formed by the concave mirrors, and your homework was to draw the two images which will be formed by the convex mirror. Is it so? And the second homework was to read the uses of concave mirrors and convex mirrors. Is it so? So these were your homework, and I think hopefully that you people have done it. Okay, so if you have not written it in your copy, the uses of concave and the convex mirror, then make sure that you write it in your copy, because it is very important for short answer type. Means for 1 marks question it can come. Okay, the uses, that where the uses are, in which objects we use your concave mirror and we use convex mirror, like that. And the second thing is that you have drawn the images which is formed by convex mirror in your classwork copy or tuition copy, whatever you have. Okay, so let's discuss some very short points in uses which you have written, etc. So concave mirrors, where they are used, so they are used in the torches, they're used in searchlights, is it so? And they are in the vehicle headlights, is it so? Okay. So why they are used? Because they emit the parallel beam of light, and that is why it is very helpful to see a very far distance also with the help of concave mirrors. Okay, because they diverge the light, they don't converge it, they diverge the light, is it so? Okay, because next use is they often use as a shaving mirrors, and the dentists also use the concave mirrors to see the enlarged image of the teeth of the patients, is it so? And you have seen that the concave mirrors are used to concentrate the sunlight, है ना? इस तरीके से मिरर को रखते हैं, सनलाइट एक पॉइंट पे आता है, देखोगे उस पेपर पे अगर तुम लोग रखोगे तो पेपर में जो है वो आग लग जाएगा. तो थ्रू द हेल्प ऑफ concave mirrors we can do this. Okay, you can do at home also. Excuse me. So these were the uses of concave mirrors. Next is your uses of convex mirror, is it so? So where the convex mirror, so convex mirror is generally used as your rear view mirror, है ना? जो vehicles में जो सामने जो दो रखता है पीछे देखने के लिए जो mirrors, उसको हम लोग rear view mirror बोलते हैं. तो they are used as rear view mirror, and they are fitted in the vehicle for the driver, so that he can see the traffic behind him, is it so? So that he can drive safely. Okay, and why the convex mirror is always preferred? We can use concave mirror also in the rear view mirror, because वो भी तो हमको बहुत दूर तक का दिखाता है. तो convex mirror ही क्यों यूज करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता है कि तुम लोग जो रे डायग्राम बनाए हो इमेज वाला, तो उसमें तुम देखे हो ना कि सारे ही केसेस में जो है वो कनकेव मिरर क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, मतलब उल्टा बनाता है. लेकिन कन्वेक्स का तुम दो केसेस ही देखे, और दोनों केसेस में तुम देखे कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, इज इट सो? मतलब जैसा है इमेज वैसा ही दिखेगा, उल्टा सीधा नहीं दिखेगा. क्योंकि जब तुम गाड़ी चला रहे हो तो तुमको तो इतना सोचने का जो है वो समय नहीं मिलेगा ना कि वो क्या चीज़ है जो कि उल्टा है, फिर उसको सीधा करो दिमाग में, तब तक गाड़ी भी चलाना है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दैट इज़ वाई जो है कन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, एंड दैट इज़ वाई दे आर प्रेफर्ड, है ना? ठीक है, ओके. सो चूँकि वो जो होता है कन्वेक्स मिरर का जो इमेज होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है ना, थोड़ा सा छोटा इमेज होता है, लेकिन वो बहुत दूर तक जो है वाइड इमेज दिखाता है, बहुत दूर तक जो है हम लोग को दिखा देता है. तो इससे ये हेल्प होता है कि तुम्हारा ज़्यादा दूर तक जो है वो ड्राइवर देख सकता है ना? बहुत दूर तक जो है वो देख सकता है कि पीछे में कौन कौन सा गाड़ी है मेरे, है ना? तो ये सब जो है ये यूजेस होता है. ठीक है, अब इस यूजेस के बाद हम लोग को जो पढ़ना है, जैसा कि हम लोग कल ही डिस्कस किए थे कि अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग अब पढ़ेंगे कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन.
ठीक है, साइन कन्वेंशन बोलते हैं। उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, देख लो कि हम लोग को पढ़ना है कि कुछ टर्म्स पढ़ना है, ठीक है, कुछ टर्म्स पढ़ना है। देखो इस तरीके से है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। Okay, so we are going to study about the sign conventions. Sign conventions, okay. So देखो किस तरीके से साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या लेते हैं नहीं लेते हैं, ये तुम लोग देख लो कि सपोज करो तुम लोग एक तो बना लोगे कनकेव मिरर, है ना, तो लोग कनकेव मिरर बना लोगे, ठीक है, ये इस तरीके से ये हो गया एम, ये हो गया एन, ये हो गया तुम्हारा पोल। इतना ही बना लो अभी फिलहाल, इससे ज़्यादा का तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है ना। अभी तुम लोग को ये देखना है कि तुम लोगों को जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इमेज जो बनता है उसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं ना, और उसके बाद इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है तुम लोग को जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो तुमको हम बता देते हैं किस तरीके से हम लोग लेते हैं। सबसे पहले तुम ये देख लो कि हम लोग डिनोट किसको क्या करते हैं, ठीक है। हम लोग को दो डिनोशन है जो हम लोग को पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग कल देखे थे कि एक जगह पे हम लोग का ऑब्जेक्ट रख रहे थे, हम लोग सपोज लाइक दिस कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे कहीं पे मेरा इमेज बना कनकेव मिरर के केस में, है ना, ऐसा हो रहा था। तो पोल से लेकर, है ना, ऑब्जेक्ट तक, ये है मेरा ऑब्जेक्ट ना, तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड पोल से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमेज डिस्टेंस, है ना। तो पोल से इमेज जहाँ पे बना, जिस पॉइंट पे इमेज बना है, तो पोल से लेकर उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे इमेज बना है वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, है ना। इमेज का वो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल। और ऑब्जेक्ट जहाँ है, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे खड़ा है पोल से, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है कि पोल से ऑब्जेक्ट कितने दूर पे खड़ा है, और इमेज डिस्टेंस का मतलब है कि ये जो इमेज नया फॉर्म हुआ है वो जो है ऑब्जेक्ट से, सॉरी, पोल से कितने डिस्टेंस पे है। तो यही होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और यही होता है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के लिए हम लोग को पर्टिकुलर एक छोटा सा टर्म है, एक छोटा सा सिंबल है जो हम लोग ले लेंगे, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा है ना, इमेज डिस्टेंस बड़ा है ना, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में ही आता भी है, ओके। तो देख लो तुम लोग पहले कि क्या लेट करना है, मतलब क्या हम लोग मानते हैं हमेशा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं यू से, है ना, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं okay. So object distance is always okay denoted by your small u, and image distance is always denoted by small v, ठीक है। अब हम लोग कुछ नियम पढ़ लेंगे कि देखो ऑब्जेक्ट किस तरफ रहेगा, डिस्टेंस कहाँ रहेगा, तो कहाँ रहेगा, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, देख लो कि सपोज कर लो, ठीक है, कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ना, तो जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा वो ये मिरर है तुम्हारा, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है ना, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, मिरर से लेफ्ट साइड है, ये मिरर से राइट साइड है। अगर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, ये है ना, ये है राइट साइड, है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, है ना। और इस केस में अगर देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। दोनों ही केसेस में हम लोग का कुछ है, हम लोग दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। अब हम लोग को ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो डिस्टेंस जो हम लोग ले रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट
मिरर से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। ये डिस्टेंस मेरा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर ये राइट साइड में है तो ये डिस्टेंस मेरा हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, है ना। इसका मतलब है कि जो u होगा, u का वैल्यू मेरा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा अगर वो मिरर से लेफ्ट साइड में है, और u का वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगा अगर वो मिरर से राइट साइड में है तब, है ना। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब देखो, अब ये तो ऑब्जेक्ट का बात हो गया, अब हो गया, अब करते हैं इमेज का बात। ठीक है, अब इमेज फॉर्म हो रहा था, है ना। तो इमेज जो फॉर्म हो रहा था, देखो कनकेव मिरर में हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर में हमेशा जो इमेज वगैरह है वो सामने ही फॉर्म होता है ना। अब कनकेव मिरर में देखो इमेज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो किस तरीके से होगा, ये देखो, ये समझ में आया, है ना। तो अब हम लोग और एक तो बना लेते हैं इधर पे, सपोज इमेज बताने के लिए ये है मेरा मिरर, है ना। सपोज करो, सपोज दैट एक ये है तुम्हारा इमेज और एक ये है तुम्हारा इमेज, है ना। ये है एक तो इमेज और ये है तुम्हारा एक तो इमेज, है ना। तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कैसे लेते हैं, ऑब्जेक्ट का तो डिस्टेंस बोल दिए कि हाँ, पोल से लेके उसका जितना डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, है ना। इमेज कितना बड़ा है वो कैसे पता करते हैं, इमेज का डिस्टेंस, ये जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है जिस लाइन पे ये मिरर खड़ा है, यहाँ से लेते हैं शुरू, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। और नीचे की तरफ अगर लेना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, वो हो जाएगा मेरा हाइट का डिस्टेंस, है ना, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, इमेज का हाइट। अब देखो किस केस में हम लोग इमेज के हाइट को, इमेज के डिस्टेंस को जो है वो, इमेज का डिस्टेंस नहीं, इमेज का हाइट बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इमेज का हाइट को, डिस्टेंस तो पता ही है, पोल से इमेज का जितना डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो अगर पोल से लेफ्ट साइड में है इमेज तो ऑब्वियसली माइनस ही में आएगा, और अगर ये इमेज राइट साइड में होता तो ये जो डिस्टेंस होता है इमेज का डिस्टेंस मतलब v, वो हमेशा मेरा प्लस में आता है ना। ओके, देखो हाइट का बात करें, ये हाइट देखो, एक केस में तुम देख रहे हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है, एक केस में देख रहे हो कि नीचे खड़ा है इमेज। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज खड़ा रहेगा तो उसका हाइट पॉजिटिव में लेंगे, किसमें लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे हाइट। और जब भी नीचे खड़ा रहेगा तो किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे हाइट, उसका हाइट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये सारा बात जो है ये कुछ साइन कन्वेंशन है जो कि याद करना है। तो पहला है कि ऑब्जेक्ट अगर हम लोग देखते हैं कि मिरर से लेफ्ट के तरफ में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट है मिरर से राइट के तरफ में तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली जो इमेज फॉर्म हुआ वो अगर मिरर से लेफ्ट में है तो इमेज डिस्टेंस माइनस, इमेज जो फॉर्म हुआ अगर वो मिरर से राइट के तरफ में है तो इमेज डिस्टेंस प्लस। अब जो इमेज फॉर्म हुआ है वो उसका हाइट के बारे में बात करते हैं, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है सीधा तो वो हो जाएगा हाइट प्लस में, अगर वो उल्टा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसका हाइट हो जाएगा माइनस में, है ना। ओके, ठीक है ना। ओके, सो इसका मतलब है कि ये तुम लोग समझ गए हो, तो अब तुम लोग एक फॉर्मूला देख लोगे जिसका नाम होगा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तुम लोग जो देखोगे वो होगा मिरर फॉर्मूला, है ना। देख लो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ये होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। ओके, वन बाई वी प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v मतलब v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f का मतलब हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे फोकल लेंथ, है ना। तो ये सारा बात ये है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब उम्मीद करते हैं कि तुम लोग समझ गए होगे, है ना। इसका कोई फोटो वोटो का जरूरत नहीं है तुम लोग को क्या, चलो फिर भी दे देते हैं। Wait. ओके, चलो।
ओके, अभी हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज योर मैग्निफिकेशन बोल के एक टर्म होता है, वो करेंगे। मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन जो होता है ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम से, है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, एंड व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? फॉर्मूला देख लो, मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। ओके, द फॉर्मूला इज हाइट ऑफ द इमेज divided by height of the object, है ना। So height of the image is taken as h dash and height of the object is taken as h. Okay, always remember that height of the image is taken as what? It is taken as your h dash and height of the object is taken as your h. Okay, अच्छा, ठीक है। अब जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हाइट ऑफ द इमेज का मतलब क्या हो जाएगा? इमेज का डिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं, है ना, जहाँ पे वो बना होगा। तो इमेज हमेशा क्या बनता है? इमेज हमेशा क्या बनता है? सामने ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? -v/u, है ना। या फिर हो सकता है पीछे भी बन सकता है, तो हम लोग ले लेते हैं कि जो इमेज बना वो पॉजिटिव बना, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमेशा सामने ही रहता है ना। तो ये हो जाएगा v, h डैश के लिए v और h के लिए -u। अब हम लोग नीचे माइनस रखते नहीं है, तो दिस विल बिकम -v/u। तो m इक्वल्स टू -v/u, और यहाँ से निकला m इक्वल्स टू h डैश बाई h। तो कैन वी राइट h डैश बाई h इक्वल्स टू -v/u। ओके, so this is also a formula, this is also a formula, and this is also a formula। ये तीनों ही फॉर्मूला जो है 1, 2 and 3, ये तीनों ही जो है ये मैग्निफिकेशन ही, ठीक है। यहाँ पे तुमको सिर्फ मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है। और इन दोनों चूंकि इक्वल थे तो इन दोनों को इक्वल करके ये लिख दिया हम लोग। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। वैसे तीनों ही फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे u जो है वो माइनस लेने का कारण क्या है कि कनकेव मिरर में हम लोग क्या लेते हैं? कनकेव मिरर में हम लोग तो हमेशा जो है वो मिरर के सामने रखते हैं ना, है ना। तो मिरर के सामने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होना है उसको, और तो कोई चारा नहीं है उसके पास, है ना। तो ये बात है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जाएंगे। अच्छा, इस चैप्टर में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है ना। तो उसके लिए एक लाइव क्लास का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मतलब एकदम वीडियो क्लास जो होता है ना उस तरीके का, ठीक है। देखो बताते हैं कब तक, ठीक है। चैप्टर ख़त्म होने दो, उसके बाद तुम लोग पढ़ लेना चैप्टर। उसके बाद एक साथ जो है एक दिन जब तुम लोग पढ़ लिए रहोगे, सब लोग ही पढ़े रहोगे तुम लोगों में से, तो फिर हम एक दिन क्लास को अरेंज जो है वो करवाते हैं, ठीक है ना। कोई चिंता का बात नहीं है इसमें, आराम से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, चलो अभी हम लोग चलते हैं। ये मैग्निफिकेशन का पार्ट खत्म हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अभी हम लोग आते हैं दूसरे फिनोमिनन में, द सेकेंड फिनोमिनन ऑफ लाइट, दैट इज अ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हो गया खत्म, अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन में। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। As you know that, as I have said in the introductory class only, that reflection and refraction, these are the two things। कभी भी अगर रिफ्रैक्शन भी होता है तो ये नहीं जानना है हम लोगों को कि 100% रिफ्रैक्शन होता है, कभी नहीं। कभी भी कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, ठीक है ना, कभी भी नहीं होता। तो रिफ्रैक्शन सपोज होता है तो इतना हमेशा याद रखना, 100% रिफ्रैक्शन कहीं नहीं होता है।
96% हमेशा जो है मैक्सिमम केसेस में कभी भी रिफ्रैक्शन हुआ तो एक ऑब्जर्वेशन है जो बताता है कि 96% रिफ्रैक्शन और 4% जो है वो रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो वी आर डिवोटेड टूवर्ड्स रिफ्रैक्शन ओनली, और कुछ भी हम लोग नहीं पढ़ता, ठीक है। और जैसा कि पिछले दिन तुम लोगों को मीन्स इंट्रोडक्टरी क्लास में ही तुम लोगों को ये हम बताए थे कि रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, रिफ्लेक्शन मीन्स द लाइट, is it so, the light will not change the medium, is it so, the light will remain in the same medium after reflection also, है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब टकराने के बाद, है ना। जैसे जो हम लोग देखे थे कि लाइट आता है, एक इंसिडेंट रे आता है, वो एक सरफेस पे क्या होता है, आके टकराता है, टकराने के बाद इस तरीके से निकल जाता है ना, तो वो सेम मीडियम में ही रह जाता है जहाँ पे है ना। तो इसका मतलब हम लोग तो समझ चुके थे पहले भी कि रिफ्लेक्शन मीन्स इट विल नॉट चेंज द मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्रैक्शन का भी हम बताए थे कि रिफ्रैक्शन कब होगा, व्हेन द लाइट विल चेंज इट्स मीडियम, है ना। जैसे मानो आया और रिफ्रैक्शन होने के बाद, हिट करने के बाद, है ना, पॉइंट पे, एक प्लेन पे पॉइंट होने के बाद वो क्या है, रिफ्लेक्शन नहीं होकर रिफ्रैक्शन हो गया, वो दूसरे मीडियम में डूब गया, है ना, वो वापस उसी मीडियम में नहीं गया, ऐसा हो जाता है। अब ऐसा होने के पीछे कारण क्या होता है ये तुम लोग जानना तुम लोग के लिए सबसे ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है, हमेशा क्यों नहीं होगा, कब कब होगा, है ना, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा तब होता है जब तुम्हारे पास, जब लाइट जब आता है तो वहाँ पे कोई भी दो मीडियम होता है। जहाँ पे एक ही मीडियम है वहाँ पे तो ये संभव नहीं है। जहाँ पे दो मीडियम है, जैसे वहाँ पे एयर है और वाटर है, ग्लास है और एयर है, एयर है और ग्लास है और वाटर है, मतलब अलग दो मीडियम जहाँ से लाइट जो है वो पास कर सकता है ना। जितने भी ट्रांसपेरेंट अगर दो मीडियम है वहाँ पे प्रेजेंट, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। कब, जबकि वो जो दोनों मीडियम है वहाँ पे प्रेजेंट, दोनों देयर इज अ, कौन सा लाइट, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला नीचे जाएगा तब दिखाई देगा, सबको ऐसे दिखाई देगा नीचे से, ठीक है हम देख लेंगे। चलो, so there when there is a difference in the density, okay, when there is a difference in the density of the two medium, जब दोनों मीडियम के डेंसिटीज डिफरेंट होंगे, जब दोनों मीडियम के डेंसिटीज डिफरेंट होंगे तब जाके होता है रिफ्रैक्शन, है ना। जब दोनों मीडियम जो है, एयर और ग्लास मान लो अगर तो एयर और ग्लास का डेंसिटी तो तुमको पता ही है कि एयर का डेंसिटी कम है और ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा है ना, ये तो स्वाभाविक सा बात है। तो ये ही है रिफ्रैक्शन की तुम लोगों का जो है वो, जब डेंसिटी डिफरेंट होता है दोनों का तब जो है वो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, तभी रिफ्रैक्शन होता है, नहीं तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से तुम लोग बहुत सारे फिनोमेनन है जो तुम लोग देखते हो। तुम्हारा कभी देखना कि सभी लोग, कोई भी, जब सपोज सबसे कॉमन एग्जांपल, जब कोई भी नहाने जाते हो तो एक कॉइन या फिर पानी का कुछ भी बर्तन होता है ना, बड़ा सा बाल्टी वगैरह, उसमें एक तो कॉइन वगैरह कुछ डाल देना, एक पेंसिल डाल देना, कुछ भी एक सामान डाल देना। जब तुम ऊपर से देखोगे, जब वो सामान नीचे डूबा रहेगा तो लगेगा ये तो सामने ही है, जैसे ही हाथ लगाओगे उस पॉइंट पे तो पता चलेगा नहीं उधर तो वो नहीं है, वो तो और नीचे है ना। तो एक जो है ये रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है ना, ऑब्जेक्ट कहीं और होता है और वाटर में रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो हमको थोड़ा ऊपर दिखता है, हमेशा ऐसा होता है। कभी भी तुम लोग देख सकते हो, कोई भी बड़ा सा बर्तन लेना, उसमें कोई भी एक सामान डाल देना जो कि डूब जाए, जब तुम लोग उसको ऊपर से देखोगे तो लगेगा वही तो है, वही तो दिख रहा है, वही तो ऊपर है। जैसे उस पॉइंट पे हाथ तुम ऐसे लगाओगे तो देखोगे कि जब हाथ में तो कुछ आया ही नहीं, वो तो और नीचे है ना। तो ऐसा होता है, दिस हैपन्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। सो ये होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ये तो लोग के पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, मतलब ये सब जो है बस इंट्रोडक्शन है, बट ये सब हम करवा देंगे तुमको, सोचे हैं, है ना। ये सब होता है अपरेंट हाइट वगैरह का है एक पार्ट, ये सब तो लोग के सिलेबस में नहीं रहता है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन इसको कर सकते हो तुम लोग, है ना। एक अच्छा टॉपिक होता है, हमेशा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है पढ़ने के लिए। सो द थिंग वी वर डिस्कसिंग वाज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के यही सब केसेस होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे कि
अब हम लोग जान गए हैं कि जो है ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है। ये तभी होगा जब देयर विल बी अ डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द टू मीडियम्स, है ना। तब हम लोग जो सबसे पहले पढ़ते हैं डेंसिटी रिफ्रैक्शन में, जो सबसे पहला केस पढ़ते हैं वो होता है तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब तुम लोग देखे हो ना, एक रेक्टेंगुलर ग्लास जैसा होता है, व्हाइट कलर का, ग्रीन कलर का, ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ? उसको पेपर वेट जैसे रखते हैं हम लोग कागज वागज दबाने के लिए। सो उसके थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हम लोग सबसे पहले जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। So the first thing is the refraction through a glass slab, है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले तुम लोगों को ग्लास स्लैब बनाना पड़ेगा, है ना। ये है, सपोज कर लो एक ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है ना। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। अब मान लो कि यहाँ पे एक तो रे आता है, ये तो तुम्हारा क्या है, एयर है ना। ये एक मीडियम एयर है, ये जो है ये क्या है, ये ग्लास है। और फिर इससे ये जो है ये क्या है, ये तो एयर ही है ना। तो ये मीडियम है, मीडियम डिफरेंस यहाँ पे है ना, एयर और ग्लास मीडियम डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो है वो होना चाहिए, है ना। अच्छा, अभी देखो ये जो है तुम्हारा चीज ग्लास स्लैब, है ना। इसमें हम लोग जो वर्किंग करना है हम लोग को, तो इसमें वर्किंग करने से पहले हम तुम लोगों को दो बात जो है वो बताना चाहते हैं कि जब रिफ्रैक्शन होता है, whenever there is a refraction, we studied just right now that when there is a difference in densities of the two substances, there is a refraction. Okay, अच्छा, अब देखो रिफ्रैक्शन जब होता है तो दो चीज होता है। एक होता है कि जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे समझाएंगे क्या होता है, ठीक है। जब रिफ्रैक्टेड रे होता है वो तुम्हारा क्या होता है, देखो इस तरीके से सपोज कर लो, ये तुम्हारा प्लेन है, ये सपोज करो एयर है, और ये है तुम्हारा वाटर, ग्लास ही पकड़ लेते हैं, चलो ना, ठीक है। यहाँ से एक रे जो है वो हिट किया, ये क्या है मेरा इंसिडेंट रे, ये होता है मेरा नॉर्मल, होता है ना नॉर्मल, हाँ नॉर्मल। अब ये रे को किस तरीके से, इस तरीके से जो है वो निकल जाना चाहिए। अगर अपना नॉर्मल रास्ता पकड़ेगा तब इस तरीके से निकलना चाहिए ना, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये इस तरीके से नहीं निकल के इस तरीके से निकलता है ना, अपने पाथ से भटक जाता है, क्लोज आ जाता है नॉर्मल के, ठीक है। ये एक केस देखते हैं हम लोग। दूसरा एक केस देखते हैं, बता देते हैं। देखो ये एक प्लेन है, ये है ग्लास एंड दिस इज एयर, है ना। एक रे आया, नॉर्मल, नॉर्मल बहुत जरूरी है ना। ये एक नॉर्मल जाना चाहिए, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये इस तरीके से निकलेगा, ये इस तरीके से निकलेगा, नॉर्मल से अपना जो नॉर्मल रास्ता है उससे दूर होकर निकलेगा, है ना। फर्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इसका नॉर्मल पाथ है उससे क्लोज होकर निकलेगा। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग दो चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखो तो ये जो नॉर्मल, जब एक रे आया तो ये जो नॉर्मल लाइन था, ये जो रे है इसको इस तरीके से निकलना था, लेकिन ये नॉर्मल के पास आ गया, ये नॉर्मल के पास आ गया, नॉर्मल रे के पास आ गया, ये है ना नॉर्मल रे डॉटेड लाइन से, ये वाला नॉर्मल, ये जो बनाया है एन से, है ना, जैसे ये है नॉर्मल। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि उस रे को तो ऐसे निकलना चाहिए था, but the ray is coming towards the normal, है ना, the ray is coming towards the normal. So this is one case when the ray travels from a rarer medium to a denser medium. What? Rarer medium to a denser medium. Air is what? Air is a rarer medium and glass is a denser medium. एयर और ग्लास में, ग्लास तो डेंस होता है ना, ज़्यादा डेंसिटी होता है उसका, तो वो डेंसर है, और एयर जो है वो रेयरर है। तो whenever the light travels from a rarer medium to a denser medium, it comes towards the normal. Okay. सेकेंड केस देखो, ग्लास से एयर में जा रहा है, मतलब ग्लास क्या है, डेंसर है, और एयर क्या है, रेयरर है। तो देखो डेंसर से अगर रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, इसका नॉर्मल पाथ ऐसा है ना, लेकिन ये देखो ये नॉर्मल लाइन जो है मेरा उससे बहुत दूर चला गया है, ये है ना,
तो ये होता है कि वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो ये दो बात तुम लोग को जो है वो दिमाग में रखना चाहिए, है ना। कौन सा दो बात बताएं अभी? द टू थिंग्स इज when the ray travels from rarer to denser, the ray will travel towards normal आएगा। अच्छा, if the ray is traveling from denser to rarer, so it will go away from normal ray। ओके, अंडरस्टूड। सो ये दो चीज होता है, ठीक है ना। अब देखो इसको एग्जाम्पल की तरह से तुम लोग समझ सकते हो। बड़ा एग्जाम्पल जो है इसका बड़ा आसान होता है। कैसे होता है देखो, सपोज करो कि तुम लोग जो है वो सभी लोग तुम लोग में से यू ऑल पीपल गो आउट फॉर दुर्गा पूजा पैंडल हॉपिंग, पैंडल हॉपिंग। तो पैंडल हॉपिंग में जब तुम लोग जाते हो तो तुम लोग क्या देखते हो कि सपोज ऐसे तुम लोग नॉर्मल हो गया, ऐसे आराम से चल रहे हो, तुम लोग अभी रेयर मीडियम, अचानक तुम लोग जाओ और लाइन लग गया, एकदम लाइन है। क्या होता है वहाँ पे, लाइन को 2 मिनट तक 5 मिनट तक ऐसे जो है वो जमा के रखा जाता है ना। उसके बाद ऐसे रस्सी एक तो हटाया जाता है ना। तो जब तक जमा के रखते हैं तो हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग दबे हुए रहते हैं, दबे से रहते हैं। जैसे ही वो रस्सी हटाता है हम लोग जल्दी जो है उस पार जाना रहता है हम लोग, है ना, क्योंकि रास्ता क्रॉस करना है। तभी तो धीरे धीरे करके हम लोग पैंडल की तरफ पहुंचते हैं, है ना। जब तुम लोग को हटा देता है रस्सी को तो तुम लोग क्या हो जाते हो, फ्री हो जाते हो। तो तुम लोग बहुत तेजी से जो है भागते हो। फिर थोड़ी देर जाने के बाद अचानक फिर तुम लोग रुक जाते हो। फिर वहां पे थोड़ी देर तुम लोग का भीड़ जो है वो जमा रहेगा। फिर वहां से एक रस्सी उठाता है, फिर तुम लोग आगे बढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज होता है। रेयरर मीडियम का मतलब क्या है, ये जो अगर एयर का बात करें जो कि एक रेयरर मीडियम है, तो एयर मतलब क्या, समझ लो कि जब तुम लोग फ्री हो, एयर का तो डेंसिटी ज्यादा नहीं है तो उसको तो ज्यादा जो है वो रुकावट नहीं मिल रहा है। लेकिन ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे रुकावट जो है ज्यादा है। इज इट सो? तो जब भी तुम लोग जैसे ही खुले से रुकावट वाले एरिया में गए, तुम लोग क्या हो गए, दब गए। तो सेम यहाँ भी हुआ कि एयर मतलब क्या था, रेयरर मीडियम, वो खुले में था और वो ग्लास में गया, मतलब रुकावट वाले मीडियम में गया, ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में गया। तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मली उसको ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो दब गया, है ना। वो दब गया, भीड़ में ऐसे दुबक के खड़ा हो गया कि वाह बहुत भीड़ है ना, दब गया। ठीक उसी तरीके से जब तुम लोग भीड़ से जैसे ही बाहर निकलते हो तुम लोग एकदम दौड़ते हुए जाते हो ना, जल्दी चलो, एकदम फास्ट होकर चलना है। तो ये अभी भीड़ में था, भीड़ से ये बाहर निकला, एयर में आया तो इसको नॉर्मली ऐसे चलना चाहिए लेकिन बहुत तेजी से वो निकल जाए, है ना। इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया? तो ये सेम चीज जो है वो होता है रिफ्रैक्शन में भी, जो हम लोग के साथ होता है वही लाइट के साथ भी होता है कि वेन एवर light travels from a rarer medium to denser medium, it will come towards the normal ray, and whenever it will pass from the denser to rarer medium, it will go away from the normal ray। ओके, सो ये दो बात जो है याद रखना। ये दो चीज इसलिए बताएं क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम लोग ग्लास लैब का जो है वो काम नहीं कर पाते, है ना। तो इसीलिए इसको बताना पड़ा हमको। अब देखो हम लोग आते हैं ग्लास लैब पे। ठीक है, अच्छा ये भी तुम लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आगे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता था। तो ये जो होगा, ये जो एंगल होगा, ये भी बता देते हैं तुम लोगों को। ये एंगल है ना नॉर्मल के साथ इंसिडेंट, है ना, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट होता है, और ये वाला जो एंगल होता है ये रिफ्रैक्टेड होता है ना। जैसे ये वाला एंगल देखो, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना। इसके साथ जो नॉर्मल उसका जो ओरिजिनल रास्ता है उसके साथ, डॉटेड लाइन के साथ नहीं बनता, है ना। तो इस तरीके से ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ये है इंसिडेंट एंगल, है ना। अब देखो ग्लास स्लैब में क्या होगा। सपोज करो एक रे आता है, आया इस तरीके से, एक रे आया, यहाँ पे हम लोग क्या बनाए, अपना नॉर्मल बनाए, नॉर्मल, है ना। अब ये एयर से ग्लास में जाना है, इसको एयर से इसको कहाँ जाना है, ग्लास में जाना है। तो अगर इसका नॉर्मल हम रास्ता बनाते हैं, इसका ओरिजिनल, ये इसको ऐसे निकलना चाहिए था लेकिन ये कैसे निकलेगा। अभी हम लोग डिस्कस किए कि एयर से ग्लास में आ रहा है, मतलब खाली जगह से भीड़ जगह में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा का मतलब क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं जाके कैसे चला जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ जाएगा। कुछ करने का नहीं है, भीड़ बहुत है ना, भीड़ बहुत है,
अच्छा अब देखो, इस पॉइंट पे आया तो यहाँ से फिर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनेगा क्योंकि यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो ये मेरा सेकंड नॉर्मल है ना। अब ये क्या है, अब ग्लास से इसको एयर में जाना है, तो नॉर्मली इसको कैसे निकलना चाहिए, नॉर्मली इसको ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन निकलेगा कैसे, ऐसे निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि अब भीड़ से खाली जगह में गया, एकदम फ्री है, एकदम दौड़ के निकलेगा, है ना। भीड़ से खाली जगह में गया तो दौड़ के निकलेगा। अब यहाँ पे भी देख लो, एंगल्स को हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन सा जो है वो कौन एंगल है ना, क्योंकि उसको पहचानना भी तो जरूरी है ना भाई, क्या। चलो तो देख लो फिर, ये मेरा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, ये हो जाएगा मेरा ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल। फिर इस केस में नॉर्मल के साथ ये है इंसिडेंट और ये है मेरा रिफ्रैक्टेड, है ना। तो दिस इज माय इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल। तो समझ में आया कि किस तरीके से काम जो है वो होता है। ग्लास स्लैब का जो है वो ड्राइंग तुम लोगों को जनरली जो है वो दे देता है ना। ग्लास स्लैब का ड्राइंग तुम लोगों को दे देता है कि शो दैट द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, इसीलिए ये जो है होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये तुम लोग को दे दिया जाता है, बहुत ही बार ऐसा होता है कि तुम लोग को ये देता है, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, तो ये सब समझ में आया ग्लास स्लैब का किस तरीके से काम होता है। ग्लास स्लैब के बाद हम लोग के पास प्रिज्म है जो कि हम लोग को देखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, हम लोग के पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने इमेज पढ़ा था वो यहाँ पे भी इमेज पढ़ेंगे। जिस तरीके से मिरर में हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा, यहाँ भी पढ़ेंगे। मिरर में हमने जो साइन कन्वेंशन पढ़ा वो लेंस में भी आगे पढ़ना है, बहुत कुछ है आगे अभी करने को। सो ये है तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। और ये है रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, ठीक है। अब अगले दिन हम लोग जो है वो पूरे अच्छे तरीके से इसको और भी करने वाले हैं और वास्ट और भी जाएंगे हम लोग, है ना। चलो तो इसका भी हम तुम लोग को एक स्नैप दे देते हैं ताकि तुम लोग के पास एक रहे काम करने के लिए। ये है तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये वाला चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखना है इसको। और ये है ग्लास स्लैब वाला, है ना, ठीक है। सो यही है तुम्हारा काम। तो तुम लोग का नेक्स्ट जो है पार्ट जो है वो कल हम अपलोड करेंगे ऑब्वियसली। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बुक पढ़ लेना जितना तक आज हम लोग पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, बुक में उतना पढ़ देना, हो सके तो उसके आगे भी पढ़ देना, क्योंकि जब अगले दिन फिर क्लास हो तो समझ में बेहतर आता है अगर पहले से पढ़ के रखा जाए तब, है ना। तो पढ़ देना तुम लोग, और बस थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। So bye, have a good day, okay.